देखो यहाँ पे जैसे अगर मैं इसको चेंज करती हूँ फॉर्मूला चेंज हो जाती है। एक मिनट, इज इट पॉसिबल जो म्यूट पे कर दे अगर सबको थोड़ी देर? कर दी ऑलरेडी। या थैंक यू। So this is something that I am really impressed with. She's filled up all the details as well, wherever it can be, you know, whatever we can fill to make a real invoice, make it look like real invoice. Data maybe. So Induji, you wanna take them through from the beginning, or should I? anyway, you are sharing, na? You take it through. I can add something. Okay. Yeah. तो मुझे वो चाहिए होगा कि हमने पहले क्या सिखाया था. Let me go through my Word document only. I mean the exercise document, and then I'll go through what we've gone through. Yeah. Just quickly go through these 3. एक ही डॉक्यूमेंट में है ना, तो it's easy. हाँ. So पहले तो हमने सीखा था कि इसको ओपन कैसे करते हैं एक्सेल को. So there are different ways. I'm gonna take you through different ways. So that's a desktop. You can click on the start button. That's the Excel over here as a big icon. That's the Excel over here as a big icon. अगर आप regularly use करते हो, then you will be able to see these icons. Otherwise, you won't. So as soon as you type here, I mean, click here. If you don't see that, just keep typing, and you will see that appears here. If you are not using it regularly, it will not appear straight away as it is appearing on mine. But as soon as you'll start using that, it will appear. So that is the other way that you can use Excel. Okay. So on this screen, I've got this one open. That's a blank file that we've opened up. That area over here, file, home, insert, page layout, they are the different names of the ribbon, or you can call that a menu bar. And as I'm clicking along, you can see all the functions that are related. साथ में आ रहे हैं. So that's called home ribbon, insert ribbon, page layout ribbon, formula ribbon, and so on. Over here, this is the address bar, address box. Wherever I'm clicking, the address is changing. That where my cell is, this little highlighted box called cell. That called column, and that called rows. The combination of column and row becomes your cell, and that's your cell address. This is your the work bar. इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम नहीं पता मुझे. Formula bar or content bar. So as I'm typing, you will be able to see over here and over here. But when you are typing a formula, then you will be able to see different thing like इसको 2 plus 5. Sorry. 2 plus 5 plus 5 और इसको मैं sum करती हूँ. यहाँ पे 12 दिखेगा, यहाँ पे formula दिखेगी. That's why it's called formula bar. फिर हमने सीखा था home bar में ये different functions called bold, italic, underline, different types of fonts, different size of fonts, size increase, size decrease, this alignment. If I have position,
That's a different angle. If you want to change your text angle, this one is merge center. You make 3 cell, you make 1. It will ask you this information. अगर इसमें data है, तो it will ask you that information कि एक ही cell की information रहेगी. That's called merge function. So now that become 1 cell. Then that's called different types of lines, grids, borders. So if I'm selecting that much, if I want box, see the box, I can select the different color, as my one was by default grayish. अभी जो दिख रही है, that's called grid lines. ये जो दिख रही है, it's called border lines. The grid lines and the border line में difference है, it's a printing difference. ये print में नहीं आती. If it's a grid lines, this becomes visible in the print when you give the borders like this. I'm gonna open my table. अरे यार, click the wrong button, sorry. फिर हमने उसको देखा था file, new file that you can create a blank new file. Then हमने देखा था open. Then you can select where you have saved your files, and then you can open the file you want from your wherever the location is. We've also seen save and save as. Save means if it's a new file, you can save it. If it's an existing file and you want to copy that plus another one, that is save as. कि ये तो है ही, इसके साथ ऐसा ही कहीं और पे भी आपको सेव करना है. So that will become duplicate file. Save मतलब जो existing file है उसको हम सेव करते हैं. अगर मैंने कोई changes किया, I wanna save it, then I go and save it. I can go that way. किसी में यहाँ पे quick bar में भी होता है, and you can do the control S as well. फिर देखा था हमने numerical functions कि इसको formatting, general number, currency, जैसे currency का $sign आ गया. Now accounting, it's a preset format. Long date, percentage, depends on your need. यहाँ पे हमने ज़्यादातर जनरल और नंबर और करेंसी अब तक यूज किए हैं. डेट यूज किया है, टाइम भी शायद यूज किया है. You can go to the more formats and you can explore what other formats are. You can also explore all those things, which is already part of this ribbon. All those additional functions, it's just become here: alignment, font, border, fill, protection. This is all over here, except protection, sorry. Formatting cell, ribbon, clipboard, cut, copy, paste. हमने देखा था. You can use cut, copy. So if I cut and paste, so I'm shifting that one way. If I cut and do insert, cut cells.
So I'm shifting this to information. So I'm moving one information to the other information without compromising the other data. But if I go back, I'm doing Control Z here. So if I do Control X and just purely P, see, I lost some data. So it was average, sum, count. So if I do Control X and Control V, I lost some data. So that's why if you do Control X and Control Insert Cut Cell, this got shifted to the other cell. Then हमने देखा था Control C and Control V. So if you do Control C, you can paste anywhere till you have this borders blinking. You can keep entering that data to anywhere else you want to. As soon as this blinking gone, if you do something else, then blinking will disappear. कंट्रोल कॉपी पेस्ट के साथ हमने पेस्ट स्पेशल वो थर्ड क्लास में देखा था. मैं अभी ही बता देती हूँ कि जैसे हमने देखा था कि पेस्ट फॉर्मेटिंग. तो अब जैसे ये मैंने येलो हाईलाइट किया हुआ है, मुझे यही फॉर्मेट चाहिए कॉपी, पर मुझे ये फॉर्मेट यहाँ पे पेस्ट करना है. तो मैं इस सेल्स को सिलेक्ट करूंगी एंड पेस्ट स्पेशल and you will find formats. Again, copy paste format. Because ये date formatting था और highlighted था, ये भी date formatting and highlight हो गया. So that is what we've done, the highlight. Copy paste formatting. जैसे ये मान लो कि यहाँ पे मैंने फॉर्मूला डाला है कि that times count of which, हाँ ऐसे फॉर्मूला डाल रही हूँ कि that times that. अब मैं इसको कॉपी करती हूँ और यहाँ पे पेस्ट करती हूँ. I need to do one thing for myself. So ये values कॉपी नहीं हुई because हमने कॉपी और पेस्ट नॉर्मल किया है. तो as is पेस्ट में फॉर्मूला पेस्ट हुआ. अब यहाँ पे C3 एंड B3 में वैल्यूज है, पर यहाँ पे E3 और D3 में नहीं है. तो वो फॉर्मूला सेल्स भी साथ साथ में शिफ्ट हुआ. अभी अगर मैं यहाँ पे कुछ डाल देती हूँ तो ये फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाएगी बिकॉज नाउ दैट इज फाइंडिंग द E3 एंड D3. अगर मुझे यही सिर्फ एज अ वैल्यू कॉपी करना है, देन आई नीड टू सिलेक्ट कॉपी स्पेशल as a value. So now you can see over here, it's just the value. See, this one is formula, this one is just the value. So that's a paste special value function. paste special value में हमने और एक सीखा था कि जैसे मैं यहाँ पे कोई amount डालती हूँ, and if I want to copy this, I'm selecting copy, और यहाँ पे इस पे paste special add. See the notice? Did you see notice the difference? It was 75 and now it become 81. What I have done is, without using any formula, I have added the 65 on top of that 75. अगर यहाँ से मुझे ये 65 minus करना है, तो I'm gonna copy this, gonna use paste special and say subtract. ये मैंने without using any formula मैंने इसको माइनस कर दिया. अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो again I'll be using copy, go paste special and use multiply, and so on. You can use the division. Paste special transpose.
तो जैसे मैंने ये सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर हॉरिजॉन्टली है, आई वांट टू कॉपी एज अ वर्टिकल इंफॉर्मेशन, so I can do pay special transpose. So ये vertical हो गया. If I select two columns, copy and यहाँ पे जाके pay special transpose, ये दो कॉलम में आ गया. हाँ, एक और था हमारा find replace. For that, I'm just gonna turn my table. To range. Convert to range. And now it's got the formatting. Like just turning my table back to normal so I can show you guys. Find replace कि जैसे मुझे कोई चीज change करनी है, so I want to find where my warehouse is, right? I want to replace this with the warehouse. All done. We made 8 replacements. So 8 जगह पे warehouse लिखा था, उसको उन्होंने the warehouse में कर दिया by double clicking here or extending or double clicking. I can resize the column to fit the content. So now it wasn't visible before. The warehouse दिख रहा है, limited नहीं दिख रहा था. Just double click. Find में एक और function था कि जैसे जैसे है Mount Roskill, and this could be case sensitive, ये case sensitive नहीं है. It could, you can type like this as well if you want to just search. वो replacement के लिए आपको चाहिए. अब जैसे मैं find कर रही हूँ, find next Mount Roskill. If I go find all, यहाँ पे मुझे लिस्ट दिखाएगा कि कितनी जगह पे माउंट रॉस्किल है. तो ये एड्रेस है, F4 में है, F5 में है, F14 में है. You click and you can shift it. So that was find replace. अगर दूसरी चीज हमने सीखी थी फिल्टर ऑप्शन, डाटा फिल्टर. ये फिल्टर लिटिल ट्रायंगल्स आ गए यहाँ पे. Now you can filter whatever the information you want to see. So that's a dishwasher only. If you want multiple, you can have dishwasher and refrigerator. I want to just look the whatever is gone to Henderson. That's one. So you can apply multiple filters as well as a single column filter. You sorting through filters. Sorting दो तरह से हो सकते हैं. You can select the data and sort functions, or you can select this sorting here as well. Okay. जैसे कि now I want to sort it by suburb. Go column A to Z or Z to A, or you want to do this way. Pros and cons, ये sorting में you have multiple option. कि जैसे मुझे चाहिए कि पहला प्रेफरेंस मिले स्टोर नेम को और दूसरा प्रेफरेंस मिले सबब को. So that you can do in this kind of sort option. But with the filter,
filter will not have multiple sorting options. It will be just one option and it will move the whole data along with it. किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लेना. मुझे ऐसे लग रहा है मैं अपने आप ही से बात कर रही हूँ. अगर आपने कोई फिल्टर ऑन किया है, when you have more big information, then sometimes you get lost कि भी कहाँ पे है मेरा फिल्टर ढूंढने में. You can say clear. So filter रहेगा, but सब अनफिल्टर हो जाएगा. दूसरा हमने देखा था all the formulas. So I'm taking some formulas now. So एक था कि home ribbon में we've got this option auto sum. उसमें सारी formulas यहाँ पे है basic. Otherwise you can type sum, जो रेंज आपको चाहिए, पूरी चाहिए, आधी चाहिए, sum of that. If I want average, sorry, average, and then the range depends on your information कि आपको कौन सी range की average चाहिए. The same information you can see over here as well at the bottom of the taskbar. So count. Now one thing you will notice here is little triangle on the corner. Can you see little triangle on the corner? यहाँ पे फॉर्मूला डाली नहीं है, यहाँ पे डाली नहीं है, यहाँ पे है. क्यों है? बिकॉज हमने पूरे सेल नहीं लिए. सो ये एक इंडिकेट करता है कि आप कुछ भूल तो नहीं रहे हो ना. इसलिए अगर यही चीज अगर मैं सम पूरी रेंज डाल के करती हूँ तो वो ट्राइंगल नहीं आएगा बिकॉज हम कुछ नहीं भूल रहे हैं. उप्स सॉरी. बिकॉज हम कुछ नहीं भूल रहे हैं. देखा, ट्राइंगल चला गया. द मोमेंट आई विल चेंज एंड नैरो डाउन माई, तो वो ट्राइंगल आ जाएगा. इट्स जस्ट एन इंडिकेशन कि आप कुछ भूल नहीं रहे हो. फिर हमने देखा था लेफ्ट. ये सेल सिलेक्ट करो, कितने चाहिए आपको लेफ्ट से, 3. द सेम वे हमने देखा था राइट. सिलेक्ट करो कितने चाहिए, 3 4 5. फिर हमने देखा था मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है यहाँ पे. अच्छा, एक और चीज, अगर इसमें कहीं से आपको अल्फाबेट बीच में आ गया, मैं अगर बीच में अल्फाबेट डालती हूँ तो कुछ होना चाहिए. नहीं हो रहा है. वेरी गुड. होना चाहिए. एरर नहीं देनी चाहिए इंदु जी इसको. Sorry, what were you doing? अगर बीच में अगर कोई नंबर नहीं है, अल्फाबेट्स है, तो एरर नहीं देगा क्या ये? हाँ, नहीं देगा. Yeah, it's That's not good. like a database, ना तो. हाँ शायद इसलिए. सॉरी गाइस, माय बैड. तो हम देख रहे थे मैक्सिमम नंबर फ्रॉम हियर. यहाँ पे देख लीजिए आप, मैक्स है 1224. सेम वे मिन, go and look for the minimum number. So as you can see, अगर आप इस डाटा को आप सॉर्ट करते हो small to largest, you can see apply the filter.
कहाँ से आएगी बीच में? 484 and 1024. श्री का होमवर्क आ गया है, बड़ी जल्दी आया श्री. Shri, thank you. बट शी हैज सम क्वेरीज, तो क्रीना जब भी हो जाए ये थोड़ा, तो उसे कुछ हेल्प चाहिए. अभी मैंने देखा उसको यहाँ पे है, तो उसको हाँ, है. अनम्यूट करके हेल्प कर पूछ लेंगे ना. हाँ, वही मैंने इसीलिए बोला, मैंने वो उसका होमवर्क फॉरवर्ड कर दिया तुमको. अच्छा, और है कस्टमाइज्ड फॉर्मूला, जो मैंने बताई थी. आप प्लस माइनस सब करके यूज करते हैं. ये प्लस ये, दैट्स योर कस्टमाइज्ड फॉर्मूला. उसके पहले आपको सिर्फ इक्वल साइन लगानी पड़ती है. It's like a calculator only, whatever you do. Navigating through multiple sheets, एक दो ऐसा आप जा सकते हो. राइट क्लिक करके you can insert more. You can rename. You can delete. हाँ, डिलीट कर दिया उसके बाद आप वापस नहीं ला सकते. अगर आपने सेव कर दिया तो, डिलीट करने के बाद सेव कर दिया, आप वापस नहीं ला सकते. ये अनडू फंक्शन नहीं है. यहाँ पे अगर कुछ डिलीट कर देती हूँ या चेंज करती हूँ, सेव किया तो शायद अनडू फंक्शन अनडू चलेगा. सेव एज की दिखा रहा है मुझे. सेव करना, ये सेव किया मैंने तो अनडू चलेगा, पर ये शीट वापस नहीं ला सकते. इट्स जस्ट अ लिटिल वार्निंग. राइट क्लिक ऑप्शन. राइट क्लिक ऑप्शन में कट कॉपी पेस्ट हमने सीखा. इंसर्ट. सो इफ यू वांट टू इंसर्ट, अब मेरा सेल यहाँ पे है. आई हैव नॉट सिलेक्टेड मल्टीपल थिंग्स, इट्स ओनली वन सेल. You can select cell, columns, multiple cells, rows, but it should be in the sequence. ऐसा नहीं कि एक यहाँ पे select करूँ, एक यहाँ पे select करूँ, ऐसा नहीं. यहाँ पे insert पूछेगा कि ये डाटा को क्या करना है आपको. उसको राइट में डालूं, डाउन में डालूं, एंटायर रो को शिफ्ट करना है, एंटायर कॉलम को शिफ्ट करना है. लेट्स सी, ये सारा उस तरफ हो गया. सेम वे इफ आई एम सिलेक्टिंग इंसर्ट डाउन, वो नीचे चला जाएगा. You can see all the whole other informations are shifting. If I say insert the entire row insert होगी. If I say insert the entire column, then entire column insert होगी. Then right click function में है delete. तो कुछ भी मैं अगर delete करती हूँ, so the delete on the keyboard and delete on this right function are different. Which way different? कि मैं अगर यहाँ से delete प्रेस करती हूँ कीबोर्ड से, अपने कीबोर्ड से, तो कोई शिफ्ट नहीं होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा. हाँ, नीचे फॉर्मूला अपने आप अपडेट हो गई क्योंकि ये डाटा चला गया इसलिए. राइट क्लिक वाला डिलीट करती हूँ, देन इट्स आस्किंग मी दिस ऑप्शन कि ये कहाँ आपको शिफ्ट करना है. या एनी कंफ्यूजन? आई एम pressing Ctrl Z just for information. I'm bringing my original information back. ऑटोफिल देखा था हमने कि जैसे एक दो कंडीशन, दो सेल कंपलसरी होने चाहिए. एंड देन यू कैन ड्रैग 3 4 5 6 7 8 9 10. वैसे ही मंडे, ट्यूसडे. आई होप इट वर्क्स ऑन माय एक्सेल. वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, जिस फॉर्मेटिंग में मैं डालूंगी. वेडडे का स्पेलिंग जिसने भी सेट किया होगा ना, उसको नहीं आता होगा पूरा वेडडे का स्पेलिंग.
वैसे ही जनवरी फरवरी आता है। आप अपनी तरह से भी कर सकते हो, जैसे मैंने 501 लिखा, 601 लिखा, वो अपने आप सिलेक्ट करेगा कि कितना डिस्टेंस है। फिर हमने डेट फंक्शंस देखे थे, टुडे, स्पेशल हो गया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसे यहाँ पे आई एम गोइंग इनटू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और देयर आर फ्यू थिंग्स बिफोर दैट कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग मुझे अगर यहाँ पे डालना है तो pre1 हाईलाइट योर रूल्स इफ इट इज ग्रेटर देन 10,000, यही नहीं कोई 10,000, 5,000 ऊपर भी कोई नहीं है, 3,000। You can see in the background is changing. You can select your color, whatever you want. यहाँ पे अगर मुझे लेना है कि I want duplicate values in case if there are any duplicate. I want top 10. Top 10 highlighted by red text. You can see these are the top 10 one. अगर मैं इसको highest से lowest करूंगी तो ये top 10 में आ जाएगा। से total। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में you can find something like between, less than, between, text that contains, so for example, if I go here and I say text that contains PB. Any question so far? You are mute. Sri, you are mute if you are talking. उसका ध्यान नहीं है। सबको समझ में तो आ रहा है ना? और कोई क्वेश्चंस है, कुछ भी क्वेरी है, प्लीज फील फ्री टू आस्क। इट्स गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि बहुत कम लोग हैं। अब मैं जानबूझ के यहाँ पे ना कोई कोई जगह पे सेल्स डिलीट कर रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट चीज मैं आपको दिखा रही हूँ, गो टू ऑप्शन विच इज ऑन कंट्रोल जी। यहाँ पे आप अपना एड्रेस सेल डाल सकते हो, यू कैन यूज द गो टू फंक्शन। से फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू गो टू A1, okay, my cursor has gone to A1. That's a simple go to function जो हम बोलते हैं। ये special is important. You need to select your information. For example, that's my information, my table. And if I select go to, go special. So over here, you see constant formulas. Constant मतलब जहां जहां पे भी सेल्स है वो सब जगह पे, जैसे मुझे constant में सारे के सारे numbers चाहिए. So it's selecting wherever it's finding the numbers, it has excluded where it find the text format. Control G, formulas. नंबर वाली फॉर्मूलाज मुझे चाहिए। कोई भी नहीं है यार मेरे सेल में, सिलेक्शन में।
Trying again with the expanded selection. See, ये सारे सेल्स में फॉर्मूलाज हैं. अब है जो एक है ब्लैंक. ये दिखाने के लिए मैंने वो बीच बीच में जगह छोड़ी थी. इट विल गो टू ओनली ब्लैंक. ये कहाँ पे किस लिए काम आएगी कि एक साथ आपको सारी चीजें भरनी है. तो जैसे अभी जितनी भी ब्लैंक है मुझे वहां पे लिखना है TBA. कंट्रोल एंड एंटर. सब जगह पे मैंने TBA लिख दिया एक साथ में. You could have done the same thing with find and replace. Find with nothing. Oop. वो सिर्फ आपको हाईलाइट करके दिखाएगा कि कहाँ कहाँ पे ब्लैंक थे और कहाँ कहाँ पे आपने रिप्लेस किए. ये फाइंड एंड रिप्लेस में इट विल बी हार्ड टू सी. Another go to function. ये था लास्ट सेल में लेके जाएगा. Wherever the last cell on your spreadsheet. So control home and control N does probably the same thing. So matlab go to function is within the same tab if you want to move around or if you want to go and do something. Go to the specific areas. अब था table formatting. Table formatting के लिए I'm just gonna delete few information and tidy it up. अच्छा, ये साथ साथ में ये भी दिखा लेती हूँ. कंडीशनल फॉर्मेटिंग. इफ आई डोंट वांट कंडीशनल फॉर्मेटिंग देन क्लियर फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल्स. So conditional formatting चला जाएगा. Now I'm gonna convert this into a table. So that's the place. Format whatever the formatting you want. You can select the formatting. ये range. तो जो एरिया सिलेक्ट किया है उसने अपने आप उसी को करेगा. My table has headers because I've got the headers, order, date, merged column. अगर ये नहीं लूंगी तो it will become like column 1, column 2, column 3. It will give its own headers. Now this is a table. If I add something, it will become part of the table. कुछ भी मैं लिखूं, it will become part of the table. Okay. अब टेबल के नीचे I should come up as last time तो आया था मेरा, but आज पता नहीं ऑटो सम क्यों नहीं आ रहा है फिल्टर. जैसे मैं यहाँ पे सम की फॉर्मूला डालती हूँ, मेरा आ रहा था ना वो, आज क्यों नहीं आ रहा. Because it's part of the table now. Average. Count. Next. ये सब आप टाइप भी कर सकते हो, but because this is a table, ये अपने आप आ रहा है. राधिका की का हाथ ऊपर है. हाँ राधिका बोलो. ना जी, ये टेबल फॉर्मेटिंग जो है, अगर उसमें हम ये जो डिस्काउंट रो है उसको कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो सेम फॉर्मेट में नहीं आता ना.
अगर ये जो रो है हमने साइड में, इसके नेक्स्ट हमने उसको कॉपी पेस्ट कर दिया डिस्काउंट रो को, पूरे कॉलम को, तो वो नहीं आएगा ना कॉपी पेस्ट करने के बाद सेम टेबल फॉर्मेटिंग में? ये इसको मैं कॉपी करूं हाँ और उसको यहाँ पे पेस्ट करूं? हाँ हाँ Because you copy paste. Copy paste doesn't become the part of the table, but if you type a new one, you are adding the data. ओके अगर आप ऐड करो डाटा को, शायद जैसे मैं अभी करूं इसको कि टोटल, ठीक है, और उसके बाद इसको मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ, अच्छा because you need to add that as a table first. अगर मैं यहाँ पे सीधी फॉर्मूला डालूंगी तो नहीं होगा, अच्छा ओके पहले मुझे उसका हेडर उसको अंदर ऐड करना पड़ेगा. ओके थैंक यू. कुछ रह तो नहीं गया? मुझे प्लीज याद दिलाना. मैं तो अपना वो 3 दिन का पेज घुमा रही हूँ. अब जो बाकी है वो सिर्फ टेम्पलेट बाकी है. यहाँ तक किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो बताओ. क्या बात है, सबको सब कुछ आ गया. बोलो जी. श्री को अनम्यूट करो. Hi, Karina. हेलो. I got so many things to ask, honestly. बोलो ना. I have to open the thing. एक मिनट, मेरा पेज में ओपन ही है. तो मेरे पास जो टेबल था पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल वो उसमें आई थिंक ज्यादा डाटा मैच नहीं हो रहा था. That's why I couldn't do some of the tasks. And also वो जो क्या बोलते हैं, इनवॉइस जो आपने भेजा है, तो उसके बारे में I have doubts. Exactly वही you wanted us to create or find and copy paste on the Excel sheet the exact invoice, और randomly कोई भी invoice बना सकते थे हम? Apply all formatting formulas to make this invoice work. Use your creativity to create an invoice. Yeah, so create an invoice like any random invoice, or जो whatever invoice you sent to us, exactly you wanted that. अगर एग्जैक्ट कर सकते हो तो वो तो पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज ही हो गया ना, मतलब एक्सरसाइज ही करनी थी आपको. अगर आपके पास कोई और है, जैसे मेरा ये फॉर्मेट है, बेसिकली आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रट्टा मारो कि मैंने जो बोला वो किया, ठीक है ना. अब जैसे अभी मैंने सबको तानिया का दिखाया. तो मैंने क्या किया था, मैं वो एक्सेल में से डिफरेंट टेम्पलेट्स जो है हमने देखा था उस दिन, उसमें से मैंने देखा तो एग्जैक्टली यही टेम्पलेट मुझे मिला उसमें, वन ऑफ देम. तो उसको एज इट इज मैंने कॉपी करके शीट में पेस्ट किया था मैंने. वो नहीं करना था, क्योंकि ये मैंने एक्सरसाइज के लिए दिया था कि आपको टेम्पलेट बनाना आना चाहिए. अब आप रेडीमेड ले लोगे तो फिर क्या मतलब है. मतलब वही तो, इसीलिए मुझे याद समझ में नहीं आया. तो से जो वो तो मिल गया था, वो मैंने कॉपी किया, इसमें पेस्ट किया. तो सैंपल के लिए कुछ डाटा मैंने ऐड किया. आई कैन स्टिल डू अनदर टेम्पलेट
बट वो टेम्पलेट बनाना आपको सीखना था, इसलिए मैंने ये एक्सरसाइज दिया था. अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि यू कैन मेक योर ओन टेम्पलेट अगर जरूरत पड़ी तो. No, I want to try again. I'll try again to make a template. So that is why I was not sure whether exactly you wanted us to find or create it exactly, or we could also copy from there and paste it and then fill the data. Whatever columns and rows you can create your own as well. It's okay. So far, so logically everything should make sense. जैसे मैं ये तानिया का भी खोल रही हूँ, तो she didn't follow the same formatting. Sorry, it's just gonna take a little while to open up. तो वो तानिया का जो है, it looks like a table, but it's an invoice. See, it's an invoice. It looks like a table, but she has used सारा लॉजिक आ गया कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करती हूँ तो सब चेंज होता है अपने आप. डिस्काउंट होता है, टैक्स रेट आ गया, सेल्स टैक्स आ गया. अब उसने खुद किया है या उसने भी कोई टेम्पलेट लिया है, मुझे नहीं पता है. ये इंफॉर्मेशन सारी उसने कहाँ से डाली है, मुझे नहीं पता है. अब वो तो मैं उससे बात करूंगी तो पता चलेगा. है तानिया, है तानिया, जवाब दो. Obviously, see, unless we tell you, you don't know. इसलिए मैं आके बोल रही हूँ मैंने क्या किया था, मुझे वो ठीक से समझ में नहीं आया. तो अगर ये हमारी the way we want to create it, if you want us to do that, I can try again. I'll try again, and I'll use some other data and some other my own design template. That's the purpose. Okay. I'll try again. I'll make one and I'll send it to you by weekend. उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन अब तक का, कोई फंक्शन नहीं समझ में आया, कोई क्वेश्चन किसी और को, सबको, को, because I've heard you've got a lot of questions. एक मिनट. क्वेश्चंस हो रहते हैं हमेशा यार. विदाउट क्वेश्चन से. और कभी ऐसा लगे कि आप कहीं पे काम कर रहे हो, वर्क में या अपना कुछ काम कर रहे हो, और इफ यू स्टक, फील फ्री टू टेक्स्ट, कॉल. डिपेंड्स ऑन, अगर मैं ऑफिस के टाइम पे हूँ तो कॉल नहीं आंसर कर सकती, बट टेक्स्ट करो. आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल. क्योंकि होमवर्क करते टाइम ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं करीना जी. You are right. होमवर्क के अलावा रियल लाइफ भी है जहाँ पे आप एक्सेल यूज करोगे. Oh, you mean jobs में? हाँ. हमारा जॉब में कुछ एक्सेल यूज ही नहीं होता, नहीं तो अब तक सीख चुके होते. हाँ, तो अभी सीखोगे तो आगे प्रमोशन आ जाएगा. Okay, wait, I'm going down to the recent work. Hey. Create functions in हाँ, ये जो एक मिनट, वो जो क्वेश्चन था ना, हर वैल्यू में से 1000 माइनस करने का. एक मिनट, वेयर इज इट? मैं दिखाती हूँ, देखो मेरी स्क्रीन पे. Sorry, bear with me. I'm trying, still going down. बहुत नीचे है वो क्वेश्चंस असाइनमेंट के. तो I tried that. ये रहा. सब, एक मिनट. Where is your video? Wait. Hello? हाँ. Are you there? I can't see you. I can see you. Where is the video? Okay, now. So many pages I opened.
Yeah, company have decided to discount 1,000 from profit. So deduct 1,000 from each line of profit. जो हर एक profit total में से 1,000 deduct करना था ना? तो 1000 को कॉपी करो, यहाँ पे जाओ, प्रॉफिट में, go to पे स्पेशल, को सब्सट्रैक्ट, ये देखना 300 860 है, हाँ 299 860. अच्छा, इसके लिए पे स्पेशल. आई फॉरगॉट दैट. मैं फॉर्मूला, क्योंकि वो कॉलम में मैं जब गई थी वहां पे कुछ फॉर्मूला खाली नंबर्स थे ना, फॉर्मूला मुझे नहीं मिल रहा था. तो मैंने क्या किया, सॉरी डोंट लाफ एट मी. नो कोई सबका वीडियो बंद है, कोई नहीं लाफ कर रहा. नहीं, बट मेरा सुनाई तो दे रहा है ना. किसी को अगर हंसना है तो हंस लो भाई, कोई बात नहीं. अब मैं श्री ने ये बोला तो तो दिखा के हंस रहे हैं, पड़ेगा देखो यार. सामने आके हंस रहे हैं. मैंने क्या किया, हर एक इसमें जाके -1000. ना आप ऐसे भी कर सकते थे कि इक्वल, यहाँ पे जाके -1000. That's what I did. Each देन इसको cell में कॉपी जाके. पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट में जाके पेस्ट वैल्यू कर दो. अरे यार, ये पेस्ट स्पेशल का मुझे याद ही नहीं था. तो मैं फॉर्मूला के लिए ढूंढ रही थी, क्योंकि जैसे बाकी जहाँ पे फॉर्मूला ऑलरेडी होता है वो एक सेल में हम करके फिर पूरा सेलेक्ट करके करते हैं ना, ऑटोमेटिकली आ जाता है. आई वाज ट्राइंग फॉर दैट, इट वाज होमवर्क नॉट. का टाइटल ही बेस्ट स्पेशल था. शिट. हंसो हंसो, सब लोग हंस लो हंस लो. हंस लो, कोई बात नहीं. बहुत हो गया सीरियस क्लास आज. यार रुलाने वाले बहुत मिलते हैं, हंसाने वाले कम मिलते हैं. मौका मत छोड़ो. और स्पेशली मुझ जैसी भोली भाली स्टूडेंट कहाँ मिलती है. हाय हाय I हाय हाय, swear. दिखाना दिखाना शक्ल दिखाना. वेरी ऑनेस्ट. वेरी ऑनेस्ट, आई कंप्लीटली एग्री, honest है. वेरी ऑनेस्ट. हाँ, या ओके. बाकी जो सब लोग म्यूट करके बैठे हैं वो भी कोई आवाज दिखाओ. अभी सब और लोग अनम्यूट हो जाओ, क्लास खत्म हो गया. सबका खाना बन गया होगा किचन में. हाँ, बर्तन भी हो गए, मेरे बाकी है अभी. मेरा भी बाकी है, देखो. मेरा हाँ. भी बाकी है. रीना, तुम्हें बनाना नहीं पड़ता, बर्तन तो कर लो. मुझे बनाना बाकी है भी ना. है, अभी खाना भी है. माय गॉड, श्री, खिलाना पता है मैं 2 दिन से तुम्हें बहुत याद कर रही थी. किस लिए पता है? मेरे घर पे ना वो क्या बोलते हैं, इडली रवा आता है पैकेट में. पहली बात ये बोलो, किसको याद कर रही थी, ज्योति जी को या मुझे? श्री साउथ इंडियन. तुम्हें हाँ, इडली रवा. मेरे